Shri Altaf Ahmed Shah IPS, all the esteemed senior officers of Ladakh Police, colleagues and trainees and the friends from media, I welcome you to the historic valedictory ceremony of pre-promotion course for lower class. Historic because Ladakh Police conducted a full-fledged in-house pre-promotion course for the first time ever. Now I would like to request Altaf sir for his welcome speech. Respected chief guest of the function, Shri S.D. Singh Jamal, IPS, DGP, UT Ladakh, esteemed guests and proud trainees. I am honored to stand before you today, marking the completion of our inaugural pre-promotion training course for Ladakh Police. This course is a historic milestone for Ladakh Police as we have for the first time successfully conducted a pre-promotion course without any external assistance from any department or institution. From devising the course syllabus and conducting the final test, from the infrastructure to the logistics, this course was truly Make in Ladakh Police. The course was attended by 55 trainees comprising of 49 policemen and 6 policewomen, and it was a long due pre-promotion course as their counterparts in Jammu and Kashmir are already serving as ASIs. This achievement is a testament to the dedication and perseverance of our trainees, instructors and support staff. I extend my gratitude to course coordinator DYSP Jigmeet, DYSP Nilza for devising the syllabus and structuring the course. The outdoor coordinator SI Padma Thilnes, permanent indoor faculty prosecuting officers Dachan Angmo and Inspector Sivang Stenzen, indoor coordinator. I extend my gratitude to all the visiting faculties from prosecution and Ladakh Police. I would also like to thank the board members constituted by Police Headquarters, SSP Piyush Fuzle IPS, SSP Security, DYSP Nizla, DYSP Khadim, PO Dachan, SI Padma Thilnes for effective and fair conduct of final tests. Our journey began on February 10, 25 with a focus on holistic development. I am delighted to report that every trainee demonstrated remarkable physical transformation with a minimum weight loss of 5 kg and a maximum of 10 kg by Mohammad Sadiq, belt number 314 of Lake Police. Throughout the training, our supervisor, instructors, cooks, support staff worked tirelessly to ensure trainees receive the best possible guidance and support. Every Saturday, we conducted basic physical training, which included a 2.5 kilometer race. The trainees showed significant improvement, completing the race in 12 minutes, down from 22 minutes initially. What is truly remarkable is that our male and female trainees performed equally well, excelling both in indoor and outdoor activities. And it makes me very proud to share that a woman HGCT who has been in charge of our bakery has topped the indoor examinations, indicating us to rethink the efficient utilization and suitable utilization of manpower in Ladakh Police. On behalf of all the trainees and Ladakh Police officials, I wholeheartedly thank the DGP sir for his vision and for his noble intentions to think about the officials whose promotion was due and making this course happen in a way crash course without wasting much time. The success of this course is also testament to the effectiveness of our training system made possible by the establishment of our training center at Stongsar. I request DG sir to take initiative to formalize our training center through the Home Department, enabling us to impart a wide range of training for varying durations. Once again, I extend my gratitude to our permanent instructors, faculty members, and visiting faculties for their invaluable contributions. To our trainees, I offer my warmest congratulations. आज एक बड़ा तारीखी मुकाम है
आज के दिन कि आपने लद्दाख यूटी की पहली प्री प्रमोशन ट्रेनिंग जो हमने लद्दाख में ही ऑर्गेनाइज की, कंसीव की और उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया। मुझे याद है 26 जनवरी के इमीडिएटली बाद अल्ताफ साहब मेरे पास आए और एक मीटिंग में हमने ये देखा कि हमारे काफ़ी जवान जो हैं जो कि प्रमोशन के लिए ड्यू हैं, बट बिकॉज आप जानते हैं लद्दाख एक नई एंटिटी है तो उसमें हर चीज़ को फॉर्मलाइज करने में टाइम लगता है। पर आप जानते हैं कि जब हम लद्दाख यूटी की बात करें, बाहर से भी यही बात है कि पुलिस ने जो यहाँ पे जो काम किया है, चाहे यहाँ की रिक्रूटमेंट हो या चाहे जहाँ का जितना भी स्ट्रक्चर बना, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव हुआ है और जो हमने कम टाइम में और अपने आप को अडेप्ट किया है, वो हमेशा पुलिस का नाम यहाँ पे आता है। और उसके लिए मैं आप सबको थैंक्स करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक एक फर्द ने पुलिस के ये जो कारनामा किया है और अचीव किया है। तो अल्ताफ साहब ने मुझसे बात की कि इनका प्री प्रमोशन कोर्स करवाना है और आप बात करें उधमपुर में, मैं इससे पहले डायरेक्टर उधमपुर एकेडमी रह चुका हूँ, तो मैंने बोला क्यों ना इसको हम यहीं करें। एक चैलेंज था हमारे लिए, पहली बार कर रहे थे और जितना मैं लद्दाखियों को जानता हूँ और जब मैं मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मुझे आपकी कैपेबिलिटी और स्किल्स में कोई भी किसी किस्म का भी डाउट नहीं है। तो मुझे पता था हम इसको इनिशिएटिव लेंगे तो इसको करके दिखाएंगे और आज मुझे बड़ी खुशी है वो हमारा डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और जो मैं देख रहा हूँ आपकी टर्नआउट जो आपने जो, और मैं क्योंकि फॉलो कर रहा था इसको, जिस हिसाब से हमने इसको किया, इट्स रियली ए कमेंडेबल फीट। इसका सारा जो श्रेय है वो जाता है अल्ताफ साहब को, हमारे जो ऑफिसर जिन्होंने इसको कंडक्ट किया, इंडोर्स का आउटडोर क्लासेस की, और खासकर हमारे ट्रेनिंग्स को जिन्होंने इतनी सीरियसली इसको किया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ना सिर्फ हम इसको कर पाए, पर अब आपकी प्रमोशन भी ड्यू जो है वो मिलेगी आपको इसकी बहुत बड़ी बधाई मेरे लिए और आपके परिवार को भी, क्योंकि अब आप नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलेगी और आप सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। ये एक और चीज दिखाता है कि अगर हम कोई चीज डिसाइड कर लें तो कोई ऐसा कारण नहीं होता कि वो अचीव नहीं हो। लद्दाख अभी 4 साल से 3-4 साल ही हुए हैं मेरे लद्दाख यूटी को बने हुए, और आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट हर किस्म की। अपने डिस्ट्रिक्ट्स भी आ गए हैं, हमारी पुलिस फोर्स भी बढ़ रही है, हमारे यूनिट्स जो हैं वो बेटर इक्विप्ड होंगे, हमारी फोर्स का साइज भी बढ़ेगा, हमारे जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें ओवरऑल एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। ये एक सिलसिला है जो आगे चलता रहेगा। आप सभी के बीच में मुझे इस बात की पूरा यकीन है कि लद्दाख पुलिस कदम ब कदम चलते हुए एक इंडिया की वन ऑफ द प्रीमियर पुलिस फोर्स बनेगी। मैं एक बार फिर अल्ताफ साहब को, अपने पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कमेंडेशन देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस 45 दिन में इतना अच्छी तरीके से कोर्स किया और एक स्टेपिंग स्टोन है। आगे आने वाले दिनों में हम इससे भी अच्छे और जो कोर्सेज यहाँ पे करेंगे, नॉट सिर्फ पुलिस के लिए, हो सकता है हम जुडिशरी का करें, फायर सर्विस का करें या किसी और डिपार्टमेंट का करें। और आज का जो सक्सेस है इसको मैं जरूर हाईलाइट करूंगा, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करेंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बताएंगे कि आप काबिल हैं इसके लिए कि हम इस किस्म के प्री प्रमोशन कोर्सेज और जो बाकी कोर्सेज है वो यहाँ पे लद्दाख में करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। करने की कोशिश करना, लेकिन सभी देशों की सरकारों की कोशिश रहती है कि वह ऐसे विरोधी तत्वों को देश के अंदर पनपने ना दे। इसीलिए देश की सुरक्षा बल इन तमाम हालातों से निपटने के लिए तैयार रहती है। इन सभी हालातों में से एक है बस का हाईजैक करना और निर्दोष जनता को बंधक बनाना।
लद्दाख पुलिस कमांडो यूनिट एक स्पेशल फोर्स होने के नाते हमें भी ऐसा ऑपरेशन करने का मौका मिल सकता है। दिनांक 26 मार्च 2025 8:30 पर एक बस जो लेह से हिमिस की तरफ जा रही थी उसको टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है। इसमें 5 इंडियन और 3 फॉरेनर पैसेंजर्स हैं। टेररिस्ट ग्रुप ने हॉस्टेजेस को छुड़ाने के बदले अपने कुछ डिमांड्स रखे हैं। लेह जेल में बंद उनकी 2 साथियों को रिहा किया जाए, पाकिस्तान के साथ होने वाली सेक्रेटरी लेवल मीटिंग को कैंसिल किया जाए, लेह एयर स्ट्रिप पर उन्हें एक चार्टर प्लेन अवेलेबल किया जाए। इंडिया की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की सभी मेंबर्स दिल्ली में इस सिलसिले में मीटिंग कर रही है और उनकी टेररिस्ट ग्रुप से उनकी डिमांड के बारे में बात चल रही है। एक स्पॉट विटनेस के मुताबिक सफ़ेद रंग की बस से टेररिस्ट ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इंसिडेंट साइट पर ही उतार दिया है और टेररिस्ट बस को लेकर डीपीएल की तरफ गए हैं। टेररिस्ट की संख्या 2 से 3 के बीच होने की उम्मीद है और सभी के पास आधुनिक हथियार हैं। बस लेह से हिमिस की तरफ जा रही है तथा 9 बजे से 10 बजे के बीच डीपीएल चोकलमसर से होकर गुजरने की संभावना है। अब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की टेररिस्ट से चल रही बात असफल हो गई है और इंडियन गवर्नमेंट ने हाईजैक्ड बस को बस इंटरवेंशन करके हॉस्टेजेस को सुरक्षित छुड़ाने का निर्देश दिया है। डीजीपी लद्दाख डॉक्टर SD सिंह जम्वाल के ऑर्डर के मुताबिक ये कार्रवाई लद्दाख पुलिस कमांडो यूनिट को दिया है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में 5 पार्टियां भाग लेंगी। अर्ली वार्निंग पार्टी, इसमें एक बड़ी पेयर होगा। इनके पास वेपन और इक्विपमेंट्स, JVPC, पिस्टल, बाइनोक्यूलर्स और रेडियो सेट रहेंगी। इनका काम बस को आइडेंटिफाई करना और खबर देना है। स्नाइपर पार्टी, इसमें 2 बड़ी पेयर होंगे। इनके पास वेपन और इक्विपमेंट, स्नाइपर राइफल और रेडियो सेट रहेंगी। इनका काम इंटरवेंशन साइट को डोमिनेट करना, भागते टारगेट को मार गिराना है। लेजी टोंग पार्टी, इसमें एक बड़ी पेयर होगा। इनके पास वेपन और इक्विपमेंट, JVPC, पिस्टल, लेजी टोंग और रेडियो सेट रहेंगी। यहाँ अर्ली वार्निंग पार्टी ने बस के निकलने का संदेश दे दिया है। अर्ली वार्निंग पार्टी के संदेश पर लेजी टोंग पार्टी ने लेजी टोंग का उपयोग कर बस के टायर पंचर कर दिए हैं, जिससे बस रुक जाएगी। बस रुकते ही असॉल्ट पार्टी और सर्च पार्टी ने बस पर हमला कर दिया है। अभी वर्तमान में सर्च पार्टी बस और बस के बंधकों की तलाशी ले रहे हैं। बस के क्लियर होने पर सर्च पार्टी का जो प्रथम बड़ी पेयर है वो आतंकवाद की तलाशी लेगा। एक कमांडो तलाशी लेगा जबकि दूसरा उसको कवर देगा। यहाँ आतंकवादी को निशस्त्र करके हमारे कब्जे में लिया जा रहा है। यहाँ एक आतंकवादी मुंह के बल गिरा पड़ा है, जिसके नीचे IED होने की संभावना दर्शाता है। ऑपरेशन सफलपूर्वक संपन्न हुआ और बंधकों को सैथालिया पुलिस के हवाले किया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको सेक्शन वाइज परिचय करना चाहूँगा। सेक्शन इस प्रकार से है। नंबर 1 सेक्शन लाठी शील्ड सेक्शन। इनका काम मसमे को तितर बितर करने के लिए गैस गन द्वारा शाल फायर करना होता है। नंबर 4 सेक्शन वार्निंग सेक्शन। इनका काम मसमे को आगाह करना होता है। करने के बावजूद सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो वाली फायर की कार्रवाई किया जाता है।
किसी के साथ लाठी चार्ज की गई। देखकर राइट कंट्रोल प्लाटून कमांडर वाल परमिट पोजीशन एक्टियार करते हुए अवानी ऐसे चौपाटी दोबारा मजिस्ट्रेट से वाली फायर करने के लिए परमिशन लेने जा प्लाटून कमांडर गोली फायर करने का हुक्म देगा। जख्मी भी हुआ, उनको उठाने के लिए स्टेजर पार्टी को हुक्म देगा कि आगे जाकर जख्मियों को उठाकर एम्बुलेंस में डालें। Qualified section, move! Order! Number 1 report! और वाली फायर सेक्शन का वेपन क्लियर करेगा। And Mohammad Siddiq Giri 314L has a special category of award 10 kgs of weight lost. All the platoon commandant should come to the stage to collect the certificates. देखिए, आप सभी जानते हैं लद्दाख यूटी जो है अभी 4-5 साल हुए हैं इसको बने हुए, और क्योंकि जिसकी जितनी कैपेसिटी से इसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है इसमें,
बट बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने जितने भी हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि एक सिलसिला चल रहा था यहाँ पे, उसको ध्यान में रखते हुए, और ये भी क्योंकि अगर यहाँ से हम कहीं और इंस्टीट्यूट में कोर्स पे भेजें तो आने जाने का दिक्कत रहती है, और जैसे आपको पता है मौसम है, रास्ते भी बंद हैं और इनका कोर्स भी काफ़ी लंबा होता था। तो हमने एक कंसिडर्ड व्यू लिया कि हम क्यों ना अपने रिसोर्सेज में और अपना जो हमारी मैन पावर है, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो है सरबराही में ही एक इस किस्म का एक पहला कोर्स यहाँ पे शुरू करें। मुझे बड़ी खुशी है कि ये 45 दिन का जो हमने कोर्स जो था इसको कंप्रेस किया गया। पहले नहीं तो 6 महीने का होता है, 45 डेज़ में इसमें हमने कंप्रेस करके, और जितने भी लॉ के रिलेटेड जो हमारी चीज़ें थी, जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे आपने देखा क्राउड कंट्रोल है, फायरिंग है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्न पुलिसिंग के लिए, वो हमने सभी इनको एक क्रैश कोर्स में हमने सिखाया। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने बड़े जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे बढ़ के इन्होंने परफॉर्म किया है। इनकी जो इंडोर क्लासेस और आउटडोर में इनके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रही है मोस्ट ऑफ द जो हमारे हैं। और इसके साथ ही साथ अब इनको एक हम प्रमोशन देंगे, ASI बनेंगे, इनका करियर ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी इस चीज़ से हमें ये चीज़ प्रूव हो गई कि हम लद्दाख में अब इतनी कैपेसिटी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी मैन पावर है, रिसोर्सेज में, कि हम इस किस्म के कोर्सेज जो हैं पुलिस के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दीगर जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जाके, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या फायर सर्विसेज हो या इस किस्म के बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी हमारे पास अब एक कैपेसिटी है अवेलेबल, और ये बड़ी खुशी की बात है। और एक पहला स्टेप है लद्दाख पुलिस का एक जो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो बनाने का, क्योंकि इससे पहले हम डिपेंड रहते थे बाकी स्टेट्स और यूटीज़ की जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स है, सेटअप है, उसके ऊपर। तो उस किस्म से हमने जो है एक पहला स्टेप लिया हुआ, और आगे और भी ये बढ़ेगा। हमारे जो SSP साहब हैं, ये अब इनको पर्सनली देख रहे हैं हमारी ट्रेनिंग के लिए भी, और क्योंकि इनका एक अपना काफ़ी एक्सपीरियंस है JNK में भी, और मैं खुद वहाँ पे डायरेक्टर रहा हूँ JK पुलिस एकेडमी में। तो वो सारे अपने एक्सपीरियंस को हमने जोड़ के एक पहल की, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम कर पाए। और आने वाले दिनों में हम और इस किस्म की जो है, जिसके लिए हम ट्रेनिंग बाहर के लिए भेजते थे या बेसिक ट्रेनिंग भी हम बाहर भेजते थे, वो भी हम इसमें यहाँ पे कर पाएंगे। और ना सिर्फ पुलिस के लिए, जैसे मैंने बताया, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी। इन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन हमारे 55 जिन्होंने हमारे जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, जिन्होंने इसको कंप्लीट किया, और अभी आज इनकी जो हमने कारकर्दगी देखी, उसके बाद हम इनको रिसेस दी है थोड़े दिनों के लिए, और उसके बाद में फिर अपने जब आके अपने डिपार्टमेंट में और जो अपना इन्होंने सीखा हुआ है उस हिसाब से हमारी इनकी परफॉर्मेंस जो और अच्छी रहेगी। सर, लद्दाख पुलिस में जो प्रमोशन काफ़ी दिन से रुका हुआ है, क्योंकि जो हमें पता चला जो इनकी बैचमेट्स JNK में ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं, तो उनका कब से होगा सर? देखिए, ये एक सिलसिला जो है, ये टेम्परेरी फेज़ है, क्योंकि जितनी हमारे पास अवेलेबल होती हैं सीट्स उतनी नहीं हो पाई, कहीं वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम है। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हर जगह वो प्रमोट हो गए, कई चीज़ों में वो पीछे हैं उनसे। तो एक सिलसिला जो हमारा, क्योंकि अभी हमारी पुलिस फोर्स जो है JK UT और इनमें पूरा डिवीज़न नहीं हुआ है, पर उसके ऊपर काम चल रहा है। पर जैसे अभी हम नई भर्तियाँ भी करने वाले हैं, तो जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, भर्तियाँ बढ़ेगी, इन प्रमोशन के एवेन्यूज़ भी ब्राइटन होंगे। सर, रिक्रूटमेंट को लेकर काफ़ी यहाँ चर्चे रहे हैं, और लद्दाख पुलिस ने हमेशा आगे बढ़ के रिक्रूटमेंट भी किया है, तो आने वाले वक्त में और किस तरह की रिक्रूटमेंट आप? अभी तो हमारी रिक्रूटमेंट जैसे सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है, बड़ा अच्छा चांस है हमारे सभी यूथ के लिए, जो अपने आप को एक लद्दाख पुलिस के साथ जोड़ें। और लद्दाख पुलिस एक नाम है, इन्होंने हर देश के लिए हर सिचुएशन में काम किया है, और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। यहाँ के नौजवानों को, लड़कियों को और लड़कों को मौका मिलेगा लद्दाख पुलिस में काम करने का, और बाद में कांस्टेबलरी की जो है प्रमोशन वो भी होगा। सर, और जब से ये UT बना है लद्दाख पुलिस ने अभी तक कितने रिक्रूटमेंट किए हैं सर? देखिए, एक रिक्रूटमेंट हमारे इससे पहले जो मैं ही था उसका चेयरमैन, वो बॉर्डर एरियाज़ की रिक्रूटमेंट थी, वो उसका प्रोसेस शुरू हुआ था जब यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर था, वो हमने कंप्लीट किया। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट्स की जो भर्तियाँ हैं वो भी कंप्लीट की हैं, और अभी हमें यकीन है कि अभी हमने कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है कि हमें और रिक्वायरमेंट है सर उसकी, वो उसके लिए हमारी जो है काम चल रहा है भारत सरकार के साथ। और जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती अभी हम करने वाले हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा।